Now in this question you are given 16th term of an AP is 82 and 21st term is 107. Now 16th term of AP is 82. This can be written as A16 is equal to 82. Similarly यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं A21 is equal to 107. Now A16 का means what? A plus 15D is equal to 82. This is the first term, first equation. And again you can write it here A plus 20D. Now 21 है तो 20D, one less, ये ध्यान रखना अपना. So this is your second term. Now we will subtract second minus first. This is your linear equation in two variables. तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड से इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं. A plus 15D is equal to 82. अब हम सेकंड माइनस फर्स्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज होगा. यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये प्लस का भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा. कैंसल आउट हो गया. ए से 20 माइनस 15 इज 5D. 107 माइनस 82 इज 25. दिस इंप्लाइज दैट D इज इक्वल टू 5. कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास. नाउ यूजिंग D is equal to 5 in equation suppose 1. तो इक्वेशन 1 हमारे पास है A plus 15D is equal to 82. तो हम लोग यहाँ पे A plus 15 D की जगह लिखेंगे 5 is equal to 82. So A plus 75 is equal to 82. This implies that A is equal to 7. This is the first term of the series AP. Now we have to find A99. So this can be written as A plus 98D. So this is equal to 7 plus A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7. 98 into D की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5. So this is equal to 7 plus 490. 98 into 5 is 490. So your answer is 497. So 99th term of the series is 497. Eight. Sum of fifth and ninth term of AP is 72. And sum of seventh and 12th term is 97. Now we are talking about the sum of fifth and ninth term. The sum of fifth and ninth term means fifth term plus ninth term is 72. Now how do we write fifth term? Fifth term को हम लिख सकते हैं A plus 4D. Ninth term को हम लिखेंगे A plus 8D, one less. So this is 2A plus 12D is equal to 72. This becomes the first equation. Similarly, 7th term and 12th term. 7th term plus 12th term is 97. So 7th term is A plus 6D. 12th term is A plus 11D. So A plus 8 2A plus 17D is equal to 97. This is the second equation. Now first equation minus second equation. The first equation 2A plus 12D is equal to 72 and second equation is 2A plus 17D is equal to 97. Again same process, subtract करेंगे हम लोग. तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग तो साइन चेंज होगा. यहाँ माइनस हो जाएगा, इस प्लस का भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा. 2A से 2A कैंसिल आउट हो जाएगा. देन 12 minus 7 is minus 5D and this is minus 25. So D is equal to 5. Okay, now if D is equal to 5, तो 2A plus 12D is equal to 72. This implies that 2A plus 12 into 5 is equal to 72.
So 2a is equal to 72 minus 60. So you get 2a is equal to 12. This implies that a is equal to what? 6. This is the first term of the series. Now we have to find the general term of the series. Now how do we find the general term of the series? an is equal to a plus n minus 1t. This is your basic formula for any term of the series. Now जनरल टर्म का मतलब ये होता है कि हम इस स्पेसिफिक सीरीज का nth टर्म फाइंड करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, a की जगह हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 6, n को आपको n ही रखना है और d की जगह आएगा हमारा 5, बिकॉज वी डू नॉट नो व्हाट इज n हियर। हम जनरल टर्म फाइंड कर रहे हैं। जनरल टर्म किसी भी टर्म को रिप्रेजेंट कर सकता है। इट कैन बी फर्स्ट टर्म, इट कैन बी 10 टर्म, इट कैन बी द लास्ट टर्म, वॉट एवर, कोई सी भी टर्म जो पूछी है। सो 5n माइनस 5, सो दिस इज इक्वल टू, so an is equal to 5n plus 1. This is your general term of the series. Means अगर मैं n की जगह 1 रखूंगा तो I will get first term, यानी 5 into 1 plus 1 will give you 6. This is the first term of the series. मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ध्यान से देखो। n की जगह 2 रखेंगे तो सेकेंड टर्म आएगी, n की जगह 10 रखेंगे तो 10 टर्म आएगी। ओके। 8. Sum of 5th and 9th term of AP is 72. And sum of 7th and 12th term is 97. Now we are talking about the sum of 5th and 9th term. The sum of 5th and 9th term means 5th term plus 9th term is 72. Now how do we write 5th term? 5th term को हम लिख सकते हैं a plus 4d, 9th term को हम लिखेंगे a plus 8d, one less. So this is 2a plus 12d is equal to 72. This becomes the first equation. Similarly, 7th term and 12th term. 7th term plus 12th term is 97. So 7th term is a plus 6d, 12th term is a plus 11d. तो a plus 8 2a plus 17d is equal to 97. This is the second equation. Now first equation minus second equation. The first equation 2a plus 12d is equal to 72 and second equation is 2a plus 17d is equal to 97. Again same process, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग तो साइन चेंज होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, इस प्लस का भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। 2a से 2a कैंसिल आउट हो जाएगा। देन 12 minus 7 is minus 5d and this is minus 25. So d is equal to 5. Okay, now if d is equal to 5, तो 2a plus 12d is equal to 72. This implies that 2a plus 12 into 5 is equal to 72. So 2a is equal to 72 minus 60. So you get 2a is equal to 12. This implies that a is equal to what? 6. This is the first term of the series. Now we have to find the general term of the series. Now how do we find the general term of the series? an is equal to a plus n minus 1t. This is your basic formula for any term of the series. Now general term का मतलब ये होता है कि हम इस स्पेसिफिक सीरीज का nth टर्म फाइंड करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, a की जगह हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 6, n को आपको n ही रखना है और d की जगह आएगा हमारा 5, बिकॉज वी डू नॉट नो व्हाट इज n हियर। हम जनरल टर्म फाइंड कर रहे हैं। जनरल टर्म किसी भी टर्म को रिप्रेजेंट कर सकता है। इट कैन बी फर्स्ट टर्म, इट कैन बी 10 टर्म, इट कैन बी द लास्ट टर्म, वॉट एवर, कोई सी भी टर्म जो पूछी है। सो 5n माइनस 5, सो दिस इज इक्वल टू
So an is equal to 5n plus 1. This is your general term of the series. Means अगर मैं n की जगह 1 रखूंगा तो आई विल गेट फर्स्ट टर्म, यानी 5 इंटू 1 प्लस 1 विल गिव यू 6. दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज. मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ध्यान से देखो. n की जगह 2 रखेंगे तो सेकंड टर्म आएगी, n की जगह 10 रखेंगे तो 10 टर्म आएगी. ओके. नंबर 10. Find the term of AP 9, 12, 15, 18 which is 39 more than its 36th term. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमको वो नंबर फाइंड करना, वो टर्म फाइंड करनी है जो इसकी 36 टर्म से 39 ज़्यादा है. तो पहले तो अपन ए और डी आइडेंटिफाई करें. ए इज इक्वल टू 9 एंड डी इज इक्वल टू 12 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 3. नाउ let the term be, required term be an which is 39 more than its 36 term. So an is 39 more, this 39 more can be written as 39 plus what, 36 term. 36 term can be written as a36. So an is equal to 39 plus a plus 35d. This implies that an is equal to 39 plus a means 9, 35 into 3. So this an is equal to 39 plus 9 plus 105. So this is your total. 48 plus 105 will give you 153. तो टर्म तो हमारे पास आ गई है, यानी जो टर्म इसकी 36 टर्म से 39 ज़्यादा है वो है 153. अब लेकिन हमको ये नहीं मालूम कि ये कौन सी पोजीशन पे आ रही है, तो हम लोग को पहले वो भी निकालना पड़ेगा. सो ए एन इज इक्वल टू 153. सो यू कैन राइट इट लाइक दिस, ए प्लस एन माइनस 1d यूजिंग द फॉर्मूला फॉर nth टर्म. a is equal to 9 plus n minus 1, d is 3, so this is equal to 153. So n minus 1 into 3 is equal to 153 minus 9 is equal to 144. So 3n minus 3 is equal to 144. So 3n is equal to 147. This will give you n is equal to 147 divided by 3 is 49. So this implies that we can say n is equal to 49 means it is the 49 term of the series. A49 is equal to 153 is the required term of given AP. Next question is, the fourth term of AP is 3 times the first and 7 term exceeds twice third term by 1. You have to find the AP. अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को. Fourth term is 3 times the first, is 3 times the first. So fourth term means a plus 3d, 3a. So this is equal to 3d is equal to 2a. तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट इक्वेशन आ रही है. एक ये रिलेशन आ गया हमारे पास 3d इक्वल टू 2a. इसके आगे तो कुछ सॉल्व हो नहीं सकता, तो इसको हम ऐसे ही रख रहे हैं. नाउ नेक्स्ट कंडीशन, seventh term means a7 exceeds means minus twice the third term. So twice the third term can be written as twice a3 by how much, by means equal to by 1. So this is equal to 1. So let us simplify this equation. a7 means a plus 6d minus 2 times a plus a3 means a plus 2d is equal to 1. So this can be written as a plus 6d minus 2a minus 4d is equal to 1. So you will get a minus 2a is minus a plus 2d is equal to 1. इस 1 को हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं, a को उधर शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2d minus 1 is equal to a. This becomes the second equation. अब सिंस a की वैल्यू हमको मालूम है तो हम a की वैल्यू डायरेक्ट फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं using a is equal to 1, 2d minus 1 in equation number 1. तो equation number 1 हमारे पास है 3d is equal to 2a. So we will use it here. 3d is equal to 2. a means 2d minus 1.
तो 3d इज इक्वल टू 2 इंटू 2d माइनस 2, ये हो गया 4d, इधर शिफ्ट होगा तो माइनस d बचेगा। सो d इज इक्वल टू व्हाट 2, कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास 2। नाउ सिंस d इज 2, अब हम इक्वेशन 2 में यूज कर रहे हैं, तो a की वैल्यू हो जाएगी 2d माइनस 1, सो a इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 1, सो a इज इक्वल टू व्हाट 2 टू द 4 माइनस 1 3। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों है, तो वी कैन फाइंड द AP। a मीन्स 3, कॉमन डिफरेंस 2 है, सो यू विल गेट 3 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 5 एंड देन 7 एंड सो ऑन। So this is your required AP. What values of n? The nth term of 2 AP. First one is 63, 65, 67, 3 and second one is 3, 10, 17 are equal. तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर दोनों AP के अंदर जो nth टर्म इक्वल है उसकी पोजीशन आइडेंटिफाई करनी है। ओके, वी हैव टू फाइंड द n फॉर विच बोथ AP हैव एन इक्वल टर्म। तो पहले दोनों AP का हम लोग nth टर्म आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो फर्स्ट AP हमारे पास है 63, 65, 67 एंड सो ऑन। तो इसमें a जो है वो है 63 और कॉमन डिफरेंस हो गया हमारे पास 2। तो इसका nth टर्म हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 d। सो दिस इज इक्वल टू 63 प्लस n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस 2 will give you 63 plus 2n minus 2 that is equal to 61 plus 2n। तो ये इसका nth टर्म हो गया। Now for the second AP, 3, 10, 17. So here a is equal to 3 and common difference d is equal to 10 minus 3 that is equal to 7। तो इसका nth टर्म हम कैपिटल से डिनोट कर रहे हैं, दैट इज योर a प्लस n minus 1 d here। So this is your a3 plus n minus 1 common difference d is 7। So this is equal to 3 plus 7n minus 7। So an will be equal to 7n minus 4। Now this is your first expression and this is your second expression. Now both nth terms are equal. So an is equal to, this is capital AN, so an की वैल्यू हो गई 61 plus 2n and this is 7n minus 4। शिफ्ट कर लीजिए आप इसको, तो ये -4 उधर शिफ्ट हो जाएगा, ये 7n इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यू विल गेट 61 plus 4 is equal to 7n minus 2n। So you can write it 65 is equal to 5n। This implies that n is equal to 65 upon 5, this is equal to 13। तो n की वैल्यू हो गई 13। This implies that 13th term is same। in both the AP. This is your final answer। Now we will learn how to find nth term from the end of AP। हमको एंड से AP के एंड से nth टर्म अगर निकालना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका प्रोसेस समझ रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास एक AP है 5, 10, 15 and then here suppose 90, 95 and 100। So 100 is the last term of the AP and we need to find the suppose, और इसमें हमको फाइंड करना है 12th term from the end of the AP। 12th term from end of AP। तो इस केस में a जो है हमारे पास वो है 5 और कॉमन डिफरेंस कितना हो गया हमारे पास, अगेन 5। ठीक है, अब मुझे इधर से 100 की तरफ से मुझे 12th टर्म फाइंड करना है। ओके, नाउ लेट अस रिवर्स दिस AP।
100, फिर क्या हो जाएगा 95, फिर हो जाएगा 90 एंड देन हियर इट इज 15, 10 एंड 5। तो इस प्रीवियस एपी के अंदर लास्ट से जो 12th टर्म हमको फाइंड करना है वो अब फर्स्ट से 12th टर्म हो जाएगा इधर से। 8/12 ये था फ्रॉम द एंड। नाउ दिस इज योर 12th टर्म फ्रॉम स्टार्ट। तो यहां पे जो लास्ट टर्म था पहले वाला वो अब फर्स्ट टर्म हो गया। अब कॉमन डिफरेंस चेक करो, दैट इज योर 95 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू व्हाट -5। ओके, तो अब आप ध्यान से देखो, तो जो लास्ट टर्म थी उसको हमने यहां पे फर्स्ट टर्म बना दिया है, और जो कॉमन डिफरेंस इस डायरेक्शन में +5 था वो रिवर्स ऑर्डर में -5 हो गया है। करेक्ट और नॉट? तो आपको क्या करना है, जब भी आपको लास्ट से एंड से nth टर्म निकालना है तो वी विल टेक लास्ट टर्म एज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस जो है उसका हम लोग साइन चेंज कर देंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि हम उसको रिवर्स ऑर्डर में देख रहे हैं। तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। So in this question we have to find the 12th term from the end of AP 3, 8, 13, 253। तो अगर हमको पूछा है एंड से तो हम लोग यहीं से AP को एज्यूम करेंगे। तो उस केस में हमारे पास जो AP है 3, 8, 13, 253 will we take this last term as the first term। तो ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट टर्म। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है, एक्चुअल कॉमन डिफरेंस हमारे पास है 5, बट अगर हम लोग पीछे से 12 टर्म फाइंड करना चाहते हैं तो हम लोग कॉमन डिफरेंस को ऑपोजिट साइन में लेंगे। अगर +5 आ रहा है तो विल टेक इट एज -5। नाउ 12th टर्म फ्रॉम द एंड। तो सिंस हम लोग एंड से AP को कंसिडर कर रहे हैं तो जो हमारा फॉर्मूला है a + 11d उसमें फर्स्ट टर्म की जगह आएगा 253, 11 इंटू -5। सो दिस इज 253 minus 55। ओके, सो यू विल गेट 253 minus 58 is 198। So 12th term of the series is 198 from the end। एक सीरीज को या एक सीक्वेंस को हम AP कब कहते हैं? जब उनकी टर्म्स का कॉमन डिफरेंस सेम होता है। ओके, सपोज अपने पास एक सीरीज है A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन अप टू AN और मे बी कंटिन्यू। तो इन दोनों का कॉमन डिफरेंस इन दोनों के कॉमन डिफरेंस के इक्वल होना चाहिए एंड इट शुड आल्सो बी इक्वल टू कॉमन डिफरेंस ऑफ द थर्ड एंड द फोर्थ टर्म एंड सो ऑन, देन इट इज सेड टू बी इन AP। लेट अस assume, suppose we are given 3 terms in AP, A, B and C। So if they are in AP, then common difference of these two terms can be written as B minus A। It should be equal to the common difference of B and C, so that is equal to C minus B। Now if they are in AP then, तो हम लोग क्या कर रहे हैं अब यहाँ पे B को इधर शिफ्ट कर लीजिए, A को इधर शिफ्ट कीजिए, तो B प्लस B इज इक्वल टू A प्लस C। तो अपने पास एक कंडीशन आ रही है 2B इज इक्वल टू A प्लस C, और दिस कैन रिटन एज B इज इक्वल टू A प्लस C बाय 2। ओके, तो दिस इज योर कंडीशन इफ A, B, C आर इन AP। तो अगर 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स AP में दे रखी हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। फाइंड x if 2x plus 1, x square plus x plus 1, 3x square minus 3x plus 3 are terms of AP। अब 3 टर्म्स हैं हमारे पास, इसको अपन A मान लेते हैं। दिस इज योर सेकंड टर्म B एंड दिस इज योर टर्म C। If these are in AP,
then your condition should be b minus a should be equal to c minus b. So this is equal to x square plus x plus 1 minus 2x plus 1 is equal to 3x square minus 3x plus 3 minus x square plus x plus 1. So ब्रैकेट ओपन करो, यू गेट, तो यहां पे अपने पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2. अब इन दोनों को उधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो यू गेट 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2. सो यू गेट एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. अब हम इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, तो यू विल गेट x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. सो अगर अब ये इक्वल टू 0 है मीन्स व्हाट, x minus 1 equal to 0 or x minus 2 is equal to 0. So you get x is equal to 1 or x is equal to 2. Now for x is equal to 1 these terms will be, अभी x is equal to 1 की वैल्यू अगर हम इसमें रखें इन तीनों में, तो हमारे पास जो टर्म्स आएंगी वो आएंगी 3,3,3 मीन्स बोथ ऑल द 3 टर्म्स आर सेम. तो दिस इज एन स्पेशल टाइप ऑफ AP, ये भी AP है, ध्यान रखिएगा, विथ कॉमन डिफरेंस व्हाट 0. सो दिस इज एन स्पेशल टाइप ऑफ AP. ओके, सो आवर आंसर्स आर x is equal to 1 and x is equal to 2.